میرے عزیز دوستو، میں نے ابھی خطبہ کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان صرف دل اور دماغ سے اسلام کے اندر داخل ہو جائے اور بس، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جتنے اعضاء و جواہر عطا فرمائے ہیں، ان تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ اسلام کے اندر پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تمام اعضاء و جوارح کو اسلام کے لیے استعمال کرو۔ اگر کوئی شخص تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ دل سے تو کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، دماغ سے کچھ اور چاہتا ہے، سوچتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، تو میرے عزیز دوستو، وہ اس آیت کریمہ کے اندر داخل نہیں ہے کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص پوری طریقے سے اسلام کے اندر داخل نہیں ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام اعتبار سے اسلام کے اندر پوری طریقے سے اسلام کے قائل ہو جائے، اسلام کے ماننے والے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، کہ اللہ کا رنگ ہی بہترین رنگ ہے، سب سے اچھا رنگ ہے۔ اور اس رنگ سے متعلق علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رنگ سے متعلق دین اسلام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر سب سے بہترین کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے اسلام کے ماننے والوں کے لیے چاہیے کہ اسلام کے اندر اسلام کے جو بھی احکامات ہیں، اسلام کے جو بھی احکام ہیں، ان تمام کے اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر عمل کرے، ان تمام کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کرے اور اس بات کی کوشش کرے کہ وہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اسلام، یہ لفظ اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ اسلام کو کسی ذات کی طرف منسوب نہیں فرمایا ہے، کسی خاص شخص کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، کسی نبی کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، کسی بادشاہ کی طرف منسوب نہیں کیا ہے۔ اس لفظ اسلام کو کسی ملک کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، بلکہ اس اسلام نام جو رکھا گیا ہے تو اسلام کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر عیسائی مذہب ہے، عیسائی مذہب عیسائی جو نام رکھا گیا ہے، یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے نام رکھا گیا ہے۔ یہودی اگر نام رکھا گیا ہے تو یہودی بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص یہودا نام کا تھا، اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہودی نام رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بدھ نام رکھا گیا ہے تو یہ اسی کے جو اس کے جو پیر تھے اور اس کے جو ماننے والے تھے، ان کے ماننے والوں کو ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ نام رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہندو ہے تو ہند کی طرف منسوب کرتے ہوئے ہندو نام رکھا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ اس دین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو لے کر آیا، اس دین کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کا دین بہترین دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کو پوری طریقے سے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے، پوری طریقے سے دین اسلام کو پر عمل کرے، نہ یہ کہ کچھ باتیں دین اسلام سے لے لے،
कुछ बातें कहीं और से लेकर के अपनी जिंदगी के अंदर उतारे और उस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में यानी इस आयत करीमा को नाज़िल करने का मकसद क्या है, इस मकसद के तहत उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब उलमाए यहूद जिन्होंने यहूद के उलमाए यहूद में से कुछ लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, ईमान को कबूल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के अपने अंदर उतारने की कोशिश किया और ईमान को कबूल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाजत दीजिए कि तौरेत को भी मैं पढ़ा करूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिन के अंदर शनीचर के दिन का एहतराम किया जाता था, मैं उस दिन का एहतराम भी किया करूं। इसी तरीके से ऊंट का दूध पीना उसके नजदीक बेहतर नहीं था, मैं उससे भी गुरेज करूं। इस तरीके से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मैं यहूद अर्ज करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, उसी मौके से अल्लाह तबारक व तआला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत नाज़िल फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क्या ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ, यानी जब तुम ईमान को कबूल कर चुके हो, इस्लाम को कबूल कर चुके हो, तो अब तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर अमल करो, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के शरीयत के ऊपर अमल करो, तुम उनके लाई हुई किताबों के ऊपर अमल करो। ये क्योंकि जब कुरान का नुज़ूल हो गया है, ये कुरान नासिख है, मूसा अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत मनसूख हो चुकी है, उसके ऊपर अमल करना मतरूक हो चुका है, इसलिए तुम अब उसके ऊपर अमल न करो, बल्कि इस्लाम के जो अहकाम है, इस्लाम की जो खूबियां है, उस खूबियां के अंदर अपने अंदर उतारने की कोशिश करो। इस्लाम बहुत ही प्यारा मजहब है, यही वो इस्लाम है जिसको बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े वजीरों ने कबूल किया है और माना है। मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए इस्लाम को हर इंसान को चाहिए कि इस्लाम को अपनी जिंदगी के अंदर उतारे। इस्लाम के अंदर शरीयत ने तमाम चीजों की रियायत कर रखा है, तमाम हुकूक बतला दिए हैं। जिंदगी का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके अंदर इस्लाम हमारी रहनुमाई नहीं करती है। जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है इस्लाम का एक पेश करता ज़ाब्ता हयात हमारी तस्वीर नहीं करता है। इस्लाम का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके अंदर कुरान हमारी क़यादत नहीं करता है, और इस्लाम का कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर शरीयत मुहम्मदी दम तोड़ देती है, बल्कि हर आन, हर लम्हा, हर वक्त और हर घड़ी इस्लाम की तालीम आपको रहनुमाई करती हुई मिलेगी। इबादत हो या तिजारत, मुआशरत हो या तिजारत, खलवत हो या जलवत, शादी हो या गम, मरना हो या जीना, हर जगह शरीयत इस्लाम या यकता और मुनफरिद हैसियत रखती है। इस्लाम ही वो मजहब है जिसने दुनिया को तहजीब और तमद्दुन का दर्स दिया है, इंसानियत का पैगाम दिया, जीने का सलीका सिखाया और मुआशरत का वो तर्ज बताया कि बड़े बड़े दानिशवारा ने कौम को भी इस्लाम के दर पर माथा टेकने पर मजबूर होना पड़ा। फारस और रूम की अक्लें हैरान हो गई, सिकंदर तारा की जुबानें खामोश हो गई और वो कहता रहा, वाकिफ तो है इस रात से ये दारुल रसन भी, वाकिफ तो है इस रात से ये दारुल रसन भी, हर दौर में तकमील वफा हमसे हुई है। मेरे अजीज दोस्तों, मजहब इस्लाम के अंदर तमाम तर खूबियां हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम खूबियों को बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर अपनी आखिरत को संवार ले। मेरे अजीज दोस्तों, तो इस्लाम के अंदर पूरी तरीके से दाखिल होने का हुक्म है और उसके लिए जरूरी है कि इस्लामी जो भी अहकामात है, इस्लामी जो भी हिदायत है, उसको अपनी जिंदगी के अंदर उतारने की कोशिश करे और पूरी तरीके से उतार ले।
आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, कि शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो क्योंकि वह खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, बहुत ही बड़ा आबिद था। आबिद कहते हैं उसे जो इबादत गुजार हो, जो रात दिन अल्लाह की इबादत में लगा हुआ हो, ऐसे शख्स को आबिद कहा जाता है। एक शख्स बनी इसराइल के अंदर बहुत ही बड़ा आबिद था, बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार था, बहुत ही ज्यादा तकवा का हामिल था। ऐसा शख्स लोगों के अंदर बहुत ही मशहूर और मकबूल था। दो शख्स, दो भाई और उसके पास एक उसकी बहन थी, सिर्फ 3 आदमी थे। उन 2 भाइयों का कहीं जाने का इरादा हुआ, सफर करने का इरादा हुआ। सफर बहुत ही तवील था। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, अपने साथ बहन को ले जाऊंगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अपनी बहन को कहाँ रखूं, किसके हवाले करके जाऊं। बहुत ही गौर व फिक्र करने के बाद वो इस नतीजे तक पहुंचता है कि वो सोचता है कि अपनी इस बहन को, अपनी इस नौजवान बहन को उस बुजुर्ग के पास रख देता हूँ, उस पीर साहब के पास रख देता हूँ जो बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार है और जो लोगों के दरमियान बहुत ही मकबूल और मशहूर है। चुनांचे वो दोनों भाई उस बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं, उनसे कहते हैं कि हजरत मैं ये चाहता हूँ कि अपनी हमशीरा को आपके पास रख करके कुछ दिनों के लिए मैं सफर पे जाऊं, आप इजाजत दीजिए और मेरी हमशीरा को अपने पास ठिकाना दे दीजिए। वो हजरत, वो बुजुर्ग इनकार करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बाद उसके भाई बार बार ये कोशिश करते हैं कि रख लिया जाए, अपने पास उनको ठिकाना दे दिया जाए। बार बार गुजारिश करने के बाद, बार बार कहने के बाद वो बुजुर्ग तैयार हो जाते हैं, वो आबिद तैयार हो जाते हैं और उसके लिए एक ठिकाना देते हैं कि उस कमरे के अंदर अपनी हमशीरा को ला करके डाल दो। उसके बाद उसके भाई सफर के लिए निकल जाते हैं। जब सफर के लिए निकल चुके होते हैं, इस दरमियान ये बुजुर्ग, ये आबिद सोचता है कि उसको खाना भी देना पड़ेगा। खाना देने के लिए अपने खादिम को उसके पास भेजता है। 1-2 हफ्ता लगातार इसी तरीके से अपने खादिम को उस लड़की के पास खाने के लिए भेजता है। उसका खादिम उसके पास जाता है, खाना रख देता है, रखने के बाद वापस आया होता है। इसी तरीके से ये सिलसिला 1-2 हफ्ता चलता है। उसके बाद शैतान इस आबिद को बहकाना शुरू करता है। शैतान अच्छी रास्ता दिखा करके बहकाने की कोशिश करता है और इस तरीके से कहता है कि आबिद, ऐ मुत्तकी और परहेजगार, तुम लोगों में इतने मशहूर हो, लेकिन तुम्हारे पास एक मेहमान है। तुम उस मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए अपने खादिम को भेजते हो। होना तो ये चाहिए था कि तुम खुद उसके पास खाना पहुंचाओ। और इस तरीके से वो आबिद थोड़ा सा बहकता है और वो खाना बजाय गुलाम के हाथों के खुद वो खाना उस लड़की के पास पहुंचाता है, रख करके वापस आ जाता है। दरवाजे के पास रखता है, वापस आ जाता है। उसके बाद इस तरीके से इस आबिद का 1-1.5 हफ्ता तक यही सिलसिला चलता है। खाना ले जाता है, रखता है, वापस चला आता है। जब वो खा चुकी होती है, प्लेट वगैरह को, बर्तनों को दरवाजे के पास रख देता है। फिर ये आबिद जाता है, उस बर्तन को उठा लेता है। फिर शैतान थोड़ा सा बहकाता है और कहता है कि ये आपके मेहमान हैं, आप उसकी मेहमान नवाजी इस तरीके से करते हैं कि खाना ले जाकर के डाल के फौरन ही वापस चले आते हैं। आप एक बात तक नहीं करते हैं, उनकी खबर खैरियत तक नहीं लेते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि आप वहां जा करके खाना दे करके कुछ
खबर खैरत लेना चाहिए था, कुछ बात मालूम करना चाहिए था। और इस तरीके से वो आबिद जब 2-3 हफ्ते के बाद खाना लेकर के फिर जाता है तो वहां पर जाकर के बैठता है, खबर खैरत लेता है, कुछ बातें करता है, फिर चला आता है। और इस तरीके से ये सिलसिला भी कम बेश 1-2 हफ्ता चलता रहता है। फिर नतीजतन इस तरीके से शैतान बहकाते बहकाते कहता है कि आपको तो चाहिए था कि उनके पास बैठ करके अच्छी तरीके से बात करना चाहिए था, ताकि उसको अपनायत महसूस हो, उनसियत महसूस हो, आपसे ताल्लुक महसूस हो कि मेरा भी कोई यहाँ है। इसलिए आपके लिए बेहतर तो ये है कि आप वहां जाकर के आप बैठते और कुछ देर बातचीत करते, अच्छे अंदाज से बातचीत करते, ताकि उनको भी एहसास होता कि मेरा भी यहाँ कोई है। इस तरीके से शैतान उस आबिद को उस लड़की से इतना करीब कर देता है, इतना करीब कर देता है, उस शैतान उस आबिद को बदकारी और ज़िनाकारी के अंदर मुबतला कर देता है। इन्ना शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये शैतान तुम्हारा कुल्लम कुल्ला दुश्मन है। एक आबिद को अपने इबादत से उस लड़के तक पहुंचाता है, उससे बदकारी का शुरू करवा देता है। अब वो लड़की हामला हो जाती है। अब वो सोचने लगता है वो आबिद अब मैं क्या करूं, वो परेशान होता है। परेशानी के नतीजे में वो आबिद ये सोचता है कि अगर इस लड़की का ये हामला होना जाहिर हो गया, लोगों के दरमियान मशहूर हो गया, मेरी आबिदियत का जो चर्चा है, लोग मुझे जो पीर बुजुर्ग मानते हैं, मुझे जो आबिद और मुत्तकी परहेजगार समझते हैं, मेरी तज़लील होगी, मेरी रुसवाई होगी। चुनांचे उस लड़की को कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद जिंदा दरगोर कर देता है, जमीन के अंदर दफना देता है। अचानक कुछ ही दिनों के बाद उसका भाई सफर से वापस आता है। सफर से वापस आता है, उस पीर के लिए, उस आबिद के लिए बहुत सारे सौगात लेके आता है, तोहफा लेके आता है। उस लड़की के लिए बहुत सारे सामान लेकर के आता है, बहुत ही खुशी के साथ आता है। लेकिन जैसे ही आता है उस आबिद की तरफ से ये खबर मिलती है कि उस लड़की का इंतकाल हो गया है और ये उसकी खबर है। फिर शैतान उस लड़की के भाई के ज़हन के अंदर डालता है कि अरे कब्र के ऊपर कहीं मक्खी बैठती है, देखो इस कब्र के ऊपर तो मक्खी बैठी हुई है, कुछ तो बात है। उसके बाद फिर एक बात डालता है कि मुझे कुछ अलग समझ में आ रहा है, आपके लिए बेहतर यह है कि आप कब्र को खोद करके देखें कि कब्र का क्या मंजर है, सही तरीके से दफनाया गया है या नहीं। इस तरीके से शैतान उसके भाई को रहनुमाई करता है। उसके भाई कब्र को खोदता है, कब्र के अंदर देखता है कि लड़की को कत्ल करके दफना दिया गया है, उनको टुकड़ों में कत्ल किया गया था और इस तरीके से उसको दफना दिया गया है। इस मंजर को उसको भाई देखते हैं, परेशान होते हैं, लोगों के दरमियान तस्करा करते हैं, लोगों के दरमियान बातें आती है। तमाम लोग इकट्ठा होकर उस आबिद को पकड़ते हैं, उसके हाथ पांव को बांधकर पूरे गांव के अंदर, पूरे इलाके के अंदर घुमाते हैं। घुमाने के बाद उस आबिद को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, आप अंदाजा कीजिए शैतान किस तरीके से प्यारे अंदाज में उस एक आबिद को बदकारी की तरफ माइल किया और इस तरीके से एक उस लड़की का कत्ल करवाया और उस लड़की के कत्ल करने के बाद उस आबिद का भी कत्ल करवाया। आप अंदाजा कीजिए शैतान अगर आपसे कुछ कहता है, आपको अगर किसी चीज से रोक रहा है, अच्छे आमाल से रोक रहा है, आप मत ये समझिए कि मेरे लिए तो आजादी है, मेरे लिए तो ऑफर है। यह आपके लिए ऑफर नहीं है। गुनाहों के बारे में किताबों के अंदर जिक्र किया गया है, लिखा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगारों को ढील देता है, छोड़े रहता है, छोड़ते छोड़ते ढील देते देते एक वक्त आता है अल्लाह तबारक व तआला उनको इस तरीके से गिरफ्त में लेता है, इस तरीके से सजा देता है कि जिसका वो एहसास तक नहीं कर पाता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ने आपको जवानी दिया है, आप अपनी जवानी की कद्र करें। जवानी की इबादत अल्लाह के नजदीक बहुत ही पसंदीदा है। आपको ज़ईफ़ी दिया है, आपकी ज़ईफ़ी से अल्लाह तबारक व तआला शर्माते हैं। आप अपनी ज़ईफ़ी की कद्र करें और अल्लाह को याद करने
कोशिश करें। आपका बचपना है, आप दीन इस्लाम को सीखने की कोशिश करें। दीन इस्लाम को सीखने के बाद अपनी जिंदगी के अंदर दीन और इस्लाम को लाने की कोशिश करें। मेरे अजीज दोस्तों, इसी तरीके से इंसान को शैतान या तो ख्वाहिश नफ्स के तरीके से बहकाता है, या एक ख्वाहिश बदन यानी पेट की ख्वाहिश की वजह से शैतान बहकाता है, माल और दौलत की वजह से शैतान बहकाता है। मेरे अजीज दोस्तों, बलान इब्ने बाऊरा का वाक़या है, बनी इसराइल का वाक़या है, किताबों के अंदर आया है, कुरान के अंदर ये आयतें हैं, कुरान के अंदर जिक्र किया गया है, जिसका मफहूम ये है कि बलान इब्ने बाऊरा ये बनी इसराइल का एक बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार शख्स था, बहुत ही तक़वा में मशहूर था। मेरे अजीज दोस्तों, लेकिन इन्होंने वाक़या बहुत ही तफसील से है, मैं इसको मुख्तसर तौर पर आपको बताता चलूं। बलान इब्ने बाऊरा को शैतान बहकाता है और कहता है कि देखो ऐसा करो, थोड़ा शख्स यानी बनी इसराइल एक कबीले के ऊपर जो हमलावर होने वाला है, जिहाद का हुक्म बनी इसराइल को मिल चुका है कि आप उससे जिहाद करें। आपको जिहाद करने का जो हुक्म मिला है बनी इसराइल को, उसके साथ बनी इसराइल के सिलसिले में, मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बलान इब्ने बाऊरा से कहा जाता है कि आप बनी इसराइल यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बददुआ कर दीजिए। बददुआ करने का हुक्म उनसे किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, वह कबीला वाले जब इनसे कहते हैं कि आप उनके लिए बददुआ कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बददुआ कीजिए, बलान इब्ने बाऊरा कहता है कि तुम किस शख्स के बारे में बददुआ के लिए कह रहे हो? उस शख्स के बारे में तुम बददुआ के लिए कह रहे हो जो अल्लाह के नबी है। नबी को बहुत सारा इख्तियारात होता है, आप उसके बारे में बददुआ करने के लिए कह रहे हो। मेरे बस की ये बात नहीं है कि मैं उनके लिए बददुआ करूं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, वो कबीला वाले जिन्होंने बददुआ के लिए कह रहा था, उन्होंने बहुत सारा गिफ्ट दिया, बहुत सारा हदिया दिया, बहुत सारा तोहफा दिया और इस बात के आमादा करने की कोशिश किया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बददुआ कर दे। नतीजतन जब बहुत सारा माल उनको मिला तो उस माल मिलने के नतीजे में शैतान उसके बीवी को बहकाता है। बलान इब्ने बाऊरा के बीवी से कहता है कि आप अपने शौहर से कहिए कि यार जब आपको उन्होंने इतना सारा माल दिया है तो क्यों ना उनके लिए बददुआ कर लेते हैं, बददुआ कर दीजिए। और इस तरीके से बलान इब्ने बाऊरा जो बहुत ही बड़ा मुत्तकी और आबिद और मुत्तकी और परहेजगार था, वो बहक जाता है, माल के नतीजे में बहक जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बददुआ करने चला जाता है, बददुआ कर रहा होता है। करना तो चाहिए था बददुआ मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, उनके लिए बददुआ नहीं निकलती है, बल्कि बददुआ के अल्फाज उसी शख्स के लिए निकलती है जो बददुआ के लिए आमादा किया था। नतीजतन जब बलान इब्ने बाऊरा बददुआ की कोशिश करता है, कोशिश के नतीजे में उनका जुबान बहुत सारा बाहर आ जाता है, उनका जुबान लटकने लगता है, वो कहने लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बददुआ करूं। हाँ, एक काम मैं तुम्हें बताता हूं, एक हीला बताता हूं, अगर तुम ऐसा करते हो तो मुमकिन है तुम कामयाब हो जाओ। और वो ये है कि अपनी बेटी को, अपनी बच्चियों को सवार करके, सजा करके बनी इसराइल के अंदर जो जिहाद के लिए आए हुए हैं, जिनका अकीदा अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर है, उनके दरमियान में अपनी बेटियों को छोड़ दो ताकि तुम्हारी बेटी उनके दरमियान जाए, वो लोग तुम्हारे बेटियों की तरफ देखे और इस तरीके से शैतान उनको बहकाए और तुम्हारे बेटियों के साथ गलत काम कर ले, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उनके कौम को हलाक और बर्बाद कर दे। मेरे अजीज दोस्तों, ये तरीका बलान इब्ने बाऊरा को बताया हुआ तरीका को उस कबीला वाले इख्तियार करते हैं, अपने बेटियों को सवार करके बनी इसराइल के दरमियान भेज देते हैं और इस तरीके से बनी इसराइल में से एक शख्स उन बच्चियों में से किसी एक बच्ची के साथ ज़िना कर लेता है। ज़िना का नतीजा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाज़िल होता है और वो अज़ाब इस तरीके से आता है, ताऊन की शक्ल में आता है और
कम बेश 70,000 आदमी 1 घंटा के अंदर हलाक को बर्बाद हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, जरूरत है इस बात की कि जरूरत है इस बात की कि हम सब के सब इस्लाम के तमाम अहकामात को अपनी जिंदगी के अंदर उतारने की कोशिश करें। शैतान जो हमें अल्लाह के अहकाम से दूर करने की कोशिश कर रहा है, उनसे हम अपने आप को रोकने की कोशिश करें। आपकी ये मस्जिद है, सच मानों में मैं महसूस करता हूँ बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए बोल देता हूँ। जिस हफ्ते में मैं कमी महसूस करता हूँ उस हफ्ते आपके दरमियान बोल देता हूँ। नमाजी की कमी महसूस हो रही है। जो नमाजी 2-2.5 सफ हो जाया करती थी, आज 1 से 1.5 सफ से सिमट चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह का हकाम है कि नमाज को कायम करो, नमाज से जुड़िए, दीन इस्लाम से जुड़िए। इस्लाम ये नहीं है कि सिर्फ नमाज हम पढ़ ले, इस्लाम ये नहीं है कि सिर्फ हम रोजा रख ले। इस्लाम के जो भी अहकामात है उन तमाम को बजा लाने की कोशिश करें। और ये नमाज तो बहुत ही अहम इबादत है, बहुत ही अहम हुक्म है नमाज से मुतालिक। इसलिए नमाज के लिए भी भरपूर तरीके से अक्सर लोगों को चाहिए कि मस्जिद की तरफ रुख करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी जवानी की, अपने बुढ़ापे की, अपने बचपने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और मस्जिद की तरफ अक्सर लोगों को, तमाम लोगों को रुख करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।